to that of solvent low temperature. Thus, the lowering of vapor pressure of solvent solution causes a lowering of the, ये लिखना पड़ेगा बेटा आपको, ये reason है. अगर मान लो reason आता है, तो now it would become equal to that of solid, that is solid solvent at lower temperature. Thus, the lowering of vapor pressure as solution to that of the pure solvent. Now, ये mathematical derivation है. Freezing point of pure solvent is equals to TF naught. Freezing point of solution TF, depression difference आ जाएगा. The decrease in the freezing point of a solvent due to lowering of vapor pressure on addition of solute in the solid is known as depression in freezing point. Similarly, elevation जैसा ये remaining derivation, delta TF is directly proportional to molality. So we remove constant, we use KF. KF is the freezing point, depression. और वन मार्क क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत कॉमनली रहता है कि व्हाट इज द केएफ केबी. तो केएफ freezing point depression constant or molar depression constant or cryoscopic constant. In case of K, it is ebullioscopic constant, elevation constant, it is depression constant, cryoscopic constant, and depends on the nature of the solvent. Unit is same in kg mole inverse. क्या आएगा? TF upon M. Now KF is equals to RMA TF square, TF naught square upon 1000 delta H fusion. Fusion means उसको melting के लिए जितनी भी energy require होगी. Putting the value, we know the molality. Formula of molality is number of moles upon mass of solvent in gram into 1000. Number of moles is equals to WB upon MB. So WB upon MB into 1000 upon WA. Putting this value in delta T. So delta TF is equals to KF and MB अगर आ रहा है तो ये MB वाला फॉर्मूला आ जाएगा. सेम फॉर्मूला है, ओनली MB और T कैलकुलेट करने के लिए, TB कैलकुलेट करने के लिए और TF कैलकुलेट करने के लिए ओनली डिफरेंस इन देयर कांस्टेंट, दैट इज KF और KB और TB और TF. Now last colligative property is osmosis and osmotic pressure. अब थोड़ा लिसन केयरफुली स्टूडेंट, पहले मैं ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन कर रही हूँ. When we put resin in water, then what happen? क्या होता है कि resin क्या होगी, किशमिश swell up हो जाती है. It means concentration of sugar is higher in किशमिश और resin and outside only solvent है. Very first day भी मैंने ये बताया था कि for pure solvent there is a no concentration. Then water moves from lower concentration to higher concentration. Solvent particle moves from lower concentration or solvent side to higher concentration through a special membrane which is known as semi-permeable membrane. क्या बोलते हैं उसको? Semi-permeable membrane. This is a animal membrane और artificial membrane भी आजकल आरओ में यूज कर रहे हैं. It is the process of spontaneous flow of solvent molecule from a dilute solution to the concentrated solution or from pure solvent to solution through a special membrane SPM till the concentration on both sides of molecule becomes equal. Okay. Now last year or last to last year क्वेश्चन था कि राइट द नेम ऑफ द सेमी परमिएबल सिंथेटिक मेम्ब्रेन एंड नेचुरल मेम्ब्रेन. मैंने लास्ट ईयर ये शायद प्री बोर्ड में भी दिया था इसी वजह से, और इस साल भी इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ. सिंथेटिक मेम्ब्रेन इज सेलोफेन मेम्ब्रेन और सेल्यूलोज एसीटेट. नेचुरल मेम्ब्रेन इज पर्चमेंट एंड पिच ब्लैडर. मतलब एनिमल मेम्ब्रेन जो होंगे या लिविंग जितने भी हैं उनके मेम्ब्रेन्स यही होते हैं. Now next one is reverse osmosis. Reverse osmosis RO का कंसेप्ट बहुत क्लियरली आपको नोन है. मैंने इसमें ना डायग्राम नहीं बना रखा है. If you have NCERT then please open the NCERT book and page number मैं बता रही हूँ. In old book it is page number 55. Yes. Now reverse osmosis में I will explain the diagram. It is for purification of water. Purification of water मतलब जहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा है. आदित्य, you have book NCERT book?
page number sea water and fresh water. There is a two compartment here, fresh water and sea water. Initially what happened, as concentration of sea water is high, so water move from fresh water to sea water. This is simple osmosis. ये simple osmosis है till दोनों की concentration equal नहीं हो जाए. And to stop osmosis, we use some pressure. This pressure is known as osmotic pressure. Osmotic pressure मैंने लिख रखा है. Osmotic pressure is preferred for means of molar mass and नहीं sorry, ये तो इसका advantage है. Osmotic pressure क्या होगा? Osmotic pressure means a pressure is applied on the pure water side to stop the movement of water another side में. अब क्या होगा? अब मान लो आप ज्यादा pressure apply कर रहे हो, higher than osmotic pressure, then what happen? Water moves from higher concentration to lower concentration. Students, please note down. Now, if we increase the pressure, then osmotic pressure, then water particles move from higher concentration to lower concentration. And अब next side में क्या हो जाएगा? Fresh water मिलेगा and this is water outlet, that is RO. RO का यही concept होता है बेटा. And large scale पे अगर apply कर रहे हैं, large membrane ले रहे हैं, large high pressure apply कर रहे हैं, so ये drinking purpose में काम में आ रहा है. Reverse osmosis, when a pressure P larger than osmotic pressure pi is applied to the solution side, the pure solvent flows out of solution to solvent side through semi permeable membrane. मैंने फिगर लिख भी रखा है 2.11. सिंपल, जस्ट आपके जो क्वेश्चन पेपर में आया वो है ना बेटा, इन प्रीवियस ईयर आपको ये डायग्राम दे दिया है एंड क्वेश्चन था कि व्हाट एक्सप्लेन दिस प्रोसेस व्हिच आवर theory of this process. Theory क्या है? It is based on reverse osmosis and now उसके बाद आप उसको explain करोगे. फिगर ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा. Just use desalination of sea water. Here मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों के इसके लिए easier way के लिए. External, P is external pressure and pi is osmotic pressure. If P is less than pi, then osmosis. If P is equal to pi, no osmosis, and P is greater than pi, then reverse osmosis. अगर ऐसा कोई reasoning question आता है कैसे भी, तो ये जो 3 points हैं, this is helpful for you. Okay, ठीक है. Now osmotic, अब ये osmotic हमने 4 qualitative properties पढ़ी. First, relative lowering in vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Third, depression in freezing point, and fourth one is osmosis. In चारों में हम from all the 4 cases we can find out the क्या find out कर पा रहे हैं? Molecular mass of solute. Molecular mass आप find out कर सकते हो, but best method is osmosis. Why osmosis is the best method for finding out the molar mass of solute or for any biomolecules? Because it is independent of temperature. That's it. One important point is that it is independent of temperature. In case of either lowering of vapor pressure or elevation in boiling point or depression in freezing point, we require temperature condition. Temperature पे based है. यहाँ पे कुछ भी temperature पे based नहीं है. That's why osmotic pressure is preferred for measuring molar mass of biomolecules. What is the meaning of biomolecules? Biomolecules means proteins और किसी का भी molar mass आपको find out करना है. As its value are high, measured accurately, measured at room temperature. ये कुछ थे बेटा osmosis and osmosis. 2 diseases हम पहले पढ़ चुके हैं कि solution अगर change हो रहा है pressure में, then कौन-कौन से थे? First one is bend for scuba divers के लिए. Second one is anoxia. Anoxia means at high altitudes when we go, then there is decrease in pressure. Now important is edema. Edema बहुत popularly known है. जिनके लिए जिनका high BP होता है उनके लिए ये अक्सर हो जाता है. Retention of water in body due to excess intake of salt. इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि जिनके भी BP है या हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको सबसे पहले क्या मना करते हैं? सॉल्ट.
आदित्य, यू हैव एनी डाउट बेटा? नहीं, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है बेटा। ठीक है। ठीक है, ऑल्दो ये बस आज चैप्टर शायद फिनिश हो जाएगा, कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो आज मैं इस मेरे वाले नोट्स को शेयर कर दूंगी तुम लोगों को ग्रुप और में। मैम एक और ठीक है, चीज, हाँ मैम पहले बोलो। डायरेक्शन फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर होता है ना? इन ऑस्मोसिस, इन सिंपल ऑस्मोसिस, है ना, सिंपल ऑस्मोसिस है थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, तो यही होगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूट साइड। नाउ वी यूज द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर यूज कर रहे हैं ऑस्मोसिस वाले साइड में। अब क्या होगा, बैलेंस हो गया, इक्वल जब तक है, नो ऑस्मोसिस। फिर अब आप हायर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो थ्रू सी वाटर साइड, तो अब क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होने के लिए वाटर मूवमेंट किधर से हो जाएगा, सी वाटर टू प्योर वाटर साइड, और सॉल्ट जो है वो थ्रू सेमी परमिएबल वाले सी साइड में, सी वाटर साइड में ही रह जाएंगे। ठीक है, मैम टेम्परेचर इसमें कोई रोल क्यों नहीं कर रहा? टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है ना, रूम टेम्परेचर पे हो रहा है बेटा। आपका जो आरओ प्रोसेस है उसमें आप टेम्परेचर थोड़ी मेंटेन कर रहे हो, तो ऑस्मा या किशमिश आपने भिगो दी है या आपने छोले कुछ भी भिगोए हैं, तो वो तो रूम टेम्परेचर पे भीगता है ना, सर्दियों में भी भीगता है, गर्मियों में भी भीगता है, तो मतलब प्रोसेस तो वही होगा ना। तो मैम अगर मतलब लिक्विड मतलब रेजेंस मिलाया पानी में, गर्म पानी, ठंडा पानी और नॉर्मल पानी, तो मतलब रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिफर नहीं करेगी? रेट ऑफ ऑस्मोसिस पे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। ऑस्मोसिस तो सिर्फ ये है ना कि वो तो मूवमेंट होना है उसका वाटर पार्टिकल्स का, इसका टेम्परेचर से कोई रिलेशन ही नहीं है। ओके, ठीक है। और तुम्हें अगर ये देखोगे तो बहुत हॉट टेम्परेचर पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ा डिस्ट्रॉय, खराब हो सकती है, तो अपन नॉर्मल टेम्परेचर ही इसीलिए रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही फंक्शन कर रहा है ये। तो मैम अभी जो हम आप कहे थे ना कि मोलैरिटी वगैरह हमारा या ऑस्मोसिस में सबसे अच्छी निकलेगी, तो मोलर मास, मोलर मास। मोलर मास, हाँ, तो मैम तो हम प्रैक्टिकल्स में भी करेंगे या दूसरे मेथड से करेंगे? नहीं, ये प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल्स नहीं है बेटा ये आप लोगों के सिलेबस में, मुझे नहीं पता अभी तक, क्योंकि सीबीएसई कुछ रिलीज नहीं कर। कोर एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि फ्यू फ्रॉम हम लोग 6 मार्क्स का ये होता है, और इसमें एनी एक बैच को कोई एक मिलता है, वन बैच इट इज फॉर फंक्शनल ग्रुप, एंड सेकेंड ग्रुप के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में आइडेंटिफाई करना है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विद टेस्ट, विथ रिएजेंट्स आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, एंड थर्ड जो है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, मैंने तब भी बताया था कि जनरली अपन लायोफिलिक प्रिपेयर करते हैं, स्टार्च और एग एल्ब्यूमिन दो लेते हैं, स्टार्च को हॉट वाटर में डिसॉल्व करते हैं और एग एल्ब्यूमिन को सिंपली योक नहीं, कौन सा वाला पार्ट होता है, एल्ब्यूमिन वाला पार्ट, एल्ब्यूमिन वाला पार्ट लेके उसको डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये बस 3-4 ही एक्सपेरिमेंट्स हैं बेटा, इसमें हम लैब में कुछ नहीं करेंगे इससे रिलेटेड। यस, नाउ एडिमा पे आए थे अपन, एडिमा पढ़ रहे थे, इसमें भी कई रीजनिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं, व्हाई हार्ट पेशेंट्स को लेस अमाउंट में इनटेक करना होता है, क्या salt, retention of water in body due to excess intake of salt, the resulting effects is called edema. To stop flow of water within a cell, to stop flow of water within a cell, अब क्या होगा, आपने, एक मिनट मैं इसको एक बार दोबारा बता रही हूँ, हमने ज्यादा सॉल्ट इनटेक किया तो आपके क्या होगा, आपके सेल के आसपास कंसंट्रेशन सॉल्ट इंक्रीज होगा। नाउ व्हाट हैपन, अब बॉडी में क्या होता जाएगा, बॉडी में वाटर रिटेन होता जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन है सेल में, तो वो बॉडी और जितना भी वाटर है वो बॉडी में इनटेक होता जाएगा, जितना भी पानी हम पी रहे हैं वो जमा होता जाएगा उस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, क्योंकि मूवमेंट होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और सेल जो है इस तरह से क्या होगी, स्वेल अप हो जाएगी, और बॉडी के अंदर जो है पानी रिटेन हो जाएगा। अगर पानी अब बॉडी के अंदर रिटेन हो रहा है तो क्या होगा, बॉडी तो आपकी उतनी है, एक्स्ट्रा प्रेशर इज रिक्वायर्ड होगा, एंड दिस एक्स्ट्रा प्रेशर इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। अब ये प्रेशर कहाँ जाएगा, दिस प्रेशर किस क्या करेगा, इट इंक्रीजेस और इफेक्ट्स द कैपिलरीज और आर्टरीज ऑफ द आर्टरीज को इफेक्ट करेगा, उसको प्रेशर डालेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा।
हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी फॉर फ्लो ऑफ ब्लड के लिए. सो वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटेक. जनरली ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए है, पर इन जनरल भी अगर आप एक हैबिट में ले आते हो सॉल्ट इनटेक कम से कम, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है बेटा. एकदम कम भी नहीं, मिनिमम नॉर्मल. नाउ लास्ट टॉपिक इज, यहाँ तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? रौनक, नमन, आयुष पूरे हैं. एबनॉर्मल मोलर मास. एबनॉर्मल मोलर मास से पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ. अब तक हमने कौन सा वर्ड यूज किया? नेगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. दैट इज नॉट तो वोलेटाइल नहीं हो रहा, neither it is ionized हो रहा है. That is if KCl, if we take KCl or NaCl, that it ionizes in water and it gives K plus and Cl minus. Now what about acetic acid? Acetic acid dimerizes due to H bond and its vapor pressure क्या होगा? Increase हो जाएगा, just double. बट ये पानी के अंदर आप कहोगे कि मैम अब तक तो हमने यही पढ़ा है कि when we dissolve in water it gives acetate ions and H plus ions. So in water it gives acetate ion and H plus ion. बेटा ये क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल में बहुत ध्यान से देखोगे कि जो एसिड्स हैं, that is carboxylic acid, if they are dissolved in water then they ionizes and number of particles increases. But if they dissolve in non-polar solvent then they only dimerizes and their number of particles decreases. Mind it, clear it. मुझे चाहे तो इसको कि अगर आप carboxylic acid, when carboxylic acid dissolve in polar solvent then it ionizes and number of particles increases. That is it gives for example acetate ion ले रहे हैं, acetic acid ले रहे हैं, that is CH3COO and H plus. But when it dissolve in non-polar solvent then it dimerizes and its vapor pressure increases and number of particles decreases. तो दो अलग-अलग formulas आ जाएंगे बेटा आपको calculate करने के लिए. If number of solute particles changes in solution by dissociation, that is KCl dissociate, or association, colligative properties changes and the abnormal molar mass is observed. First point था ये कि क्यों abnormal molar mass आता है. Second point, ionic compound ionizes when dissolved in water. So number of moles of particles increases in solution and number of moles of solution increase हो गए, it means colligative property also increases. Colligative, एक मिनट बेटा, एक इस वाले फॉर्मूले को देखो बेटा. मोलर मास जो है is inversely proportional to delta TF. What is the meaning of delta TF or TV? That is a relative lowering or relative depression in freezing point or increasing in elevation in boiling point. So अगर colligative property increase हो रही है then molar mass decrease हो जाएगा. Always inversely proportional. There is a relation. तो ये बात ध्यान रखना कि डेल्टा टी मतलब मोलर मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के है. यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे as number of particles increases, Cl number of particles क्या हुआ? 2 हो गए, K plus and Cl minus. पर आपके इंडिविजुअल आयंस का मोलर मास क्या हो गया? हाफ हो गया जस्ट KCl से. हम पहले KCl का कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेशन करते तो हम KCl के लिए करते. यहाँ पे आप किसके लिए करोगे? इंडिविजुअली K plus आयंस और Cl minus आयन. Yes. Colligative properties changes and the abnormal molar mass is observed. Ionic compound ionizes when dissolved in water, so number of moles of particle increases in solution. If there is no interaction, हम ये मानते हैं there is no interaction or inter-ionic repulsion or interaction, and boiling point increases as number of particle increases. If value of degree of dissociation is unknown, then the molar mass of 1 mole ionic compound is just half of the actual molar mass. ये एक important है, जब आप लोग notes में लिखोगे तो इसको underline कर लेना, ये वाला point. Then boiling point increases and number of particles increases if value of degree of dissociation is unknown. मतलब अल्फा हमें नहीं पता, हम कैलकुलेट नहीं कर रहा है. Then the molar mass of 1 mole of ionic
ionic compound, just half of the actual molar mass of the experimentally determined molar mass. And experimentally determined molar mass is always lower than the actual mass. यहाँ तक समझ में आ गया? मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट. आदित्य, is it clear? Yes, sir. Okay. Yes. रौनक, you have any doubt? रौनक, टेबल किसके लिए लेते हैं? वाटर के लिए. And is doubled as it forms bond. H bond बना लेगा. And if all the molecule of carboxylic acid associate, then colligative property decreases. As colligative property, again मैं कह रही हूँ inversely proportional to molar mass. यहाँ पे dimerize का वाला formula दिया हुआ है. This is one carboxylic acid, RCOOH. This is another carboxylic acid. H forms H bond. So अगर यहाँ पे अपन carboxylic acetic acid लें, that is CH3COOH, and actual calculated molar mass of acetic acid or ethanoic acid is 60. Calculate कर लो CH3COOH का, and experimentally it is 120. Why? As तो क्या हो जाएगा रीजन? एट इट इज डायमेराइजेस इन वेपर फेज, सो इट्स वेपर प्रेशर और मोलर मास उससे कैलकुलेट करेंगे. Quantitatively, the extent to which a solute is associated or dissociated can be expressed by want of factor I. ये I का क्वेश्चन बेटा बहुत बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना. व्हाट इज want of factor? राइट द फॉर्मूला. अगर सिर्फ ओनली यही आता है ना, व्हाट इज want of factor, सो आपको ये देना पड़ेगा. want of factor यहाँ पे मैंने डेफिनेशन इसीलिए क्लियरली लिखी है. Quantitatively, the extent to which a solute is associated or dissociated can be expressed by want of factor I. It is a ratio of normal mass to experimentally determined molar mass. Normal mass means calculated molar mass, जो कि हम theoretically calculate कर रहे हैं. And second one is experimentally determined molar mass. Experimentally determined molar mass is calculated by above qualitative properties जो कि अपन ने discuss किए. Now here is some relation. I is equals to normal molar mass upon experimentally or abnormal molar mass, or observed colligative property, that is through जो भी ऑब्जर्व किया है हमने, एंड कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय नॉन वोलेटाइल नॉन आयनाइज्ड सॉल्यूट. ये मेंशन किया है मैंने क्योंकि कंफ्यूजन होता है बेटा न्यूमेरिकल्स में. आप लोग अक्सर ये पूछते हो कि हमें ऑब्जर्व वैल्यू कौन सी लेनी है, कैलकुलेटेड कौन सी लेनी है. ऑब्जर्व्ड गिवन होगी, मे बी गिवन होगी, और कैलकुलेटेड आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी थ्रू फॉर्मूला जो कि आपको मोलैरिटी और जो भी चीज गिवन होंगी उससे. और I is equals to total number of moles of particles after association or dissociation or before association or dissociation. Now again, total number of particles after association. After association, तो पहले कितने थे? 2 थे, and after association कितना हो गया? 1. नहीं आया क्या समझ में आदित्य? Total number of moles of particle after association or dissociation. पहले association की बात कर रही हूँ कुनाल. पहले 2 पार्टिकल्स थे. नाउ आफ्टर एसोसिएशन इट बिकम्स 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1/2. बिफोर तो 2 थे. हेलो कुणाल. एंड अब कितने हैं? एसोसिएशन 1 है. एंड सेम वे अगर डिसोसिएशन, इनिशियली आफ्टर डिसोसिएशन बिफोर क्या था? 1. चेंज हो जाएगा. इस तरह से लिखोगे. हाँ कुणाल बोलो. हम एसोसिएशन से पहले 2 थे तो वो इंटरमिक्स होके 1 हो रहे हैं. हाँ, इंटरमिक्स होके 1 हो गए ना, मतलब एसोसिएट होके 1 हो गए. तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर अपन मोल्स आफ्टर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो पहले 2 थे, है ना, और बाद में कितने हो गए? 1/2 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय बिफोर है. और डिसोसिएशन में क्या हो जाएगा? पहले 2 थे और बाद में क्या हो गए? 1 हो गए हैं, तो 2/1 हो जाएगा. ठीक है. यस. एंड ये कैलकुलेशन के लिए है बेटा. फॉर एग्जांपल आई कैलकुलेट करना है फॉर डिसोसिएशन KCl K+Cl, तो आई क्या हो गया? या मैंने यहाँ पे देखो क्लियर कर भी दिया है. 2/1 कर्सर पे 2 हो गए हैं. एंड ये एक है, इसको मैंने बॉक्स में बनाया. मैं हमेशा कहती हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजों को बॉक्स में लिखा करो. I is greater than 1 in case of dissociation because number of particles increase हो गए हैं, and I is less than 1 in case of
एसोसिएशन, ठीक है। नाउ यहाँ पे डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं, डिग्री मींस अल्फा, ये 11th के इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है बेटा। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू आयन, ये किसके लिए है, ये है आपके डिसोसिएशन के लिए, दूसरा वाला है आपके एसोसिएशन के लिए। इनिशियली इट इज 1, शुरू स्टार्टिंग में 0, नाउ आफ्टर डिसोसिएशन इट इज 1 माइनस अल्फा, एन अल्फा बन जाएगा जैसे 11th में था, टोटल 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, टोटल कर लो। एंड नाउ आई इज इक्वल्स टू वो जो फॉर्मूला था अपना आफ्टर एसोसिएशन एंड बिफोर एसोसिएशन, पुटिंग द वैल्यू, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। कैलकुलेशन आप नहीं करना है, कभी भी नहीं आता है ये कैलकुलेशन, जस्ट आप फॉर्मूला अगर लर्न कर पाते हो तो इट्स गुड। अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 एंड एन इज इक्वल टू आई ऑन डिसोसिएशन ऑफ 1 यूनिट सॉल्यूट, 1 यूनिट सॉल्यूट। आपका अगर बैलेंस्ड है तो आप उसको 1 मोल के लिए कन्वर्ट कर लोगे, ऐसा नहीं कि बैलेंस इक्वेशन में हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट 1 सिंगल उसके लिए चाहिए। के का फॉर्मूला हमें बताइए, CF² 1 minus alpha, C is concentration. Now in the same way for association n molecules हैं and ये क्या हो जाएंगे, associate हो जाएंगे, initially 1 0 1 minus alpha, इतने associate हुए और जितने थे उसका हाफ हो जाएगा ना, अगर 10 थे तो n कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 associate हो रहे हैं, डायमराइज हो रहे हैं, तो अल्फा बाई n। एंड सेम वे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और अपने हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अगेन इसके लिए भी वैल्यू लर्न कर लेना, आई फॉर्मूला लर्न कर लेना, आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूलेज हैं फॉर न्यूमेरिकल के। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ, ये इतना देख रहे हो, ये कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस, दीज आर सम रीजनिंग क्वेश्चंस। ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ग्लूकोज कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, कई बार हाइपोटोनिक, ये सारा कुछ है। वी विल डिस्कस इट टुमारो, कल डिस्कस करूंगी क्योंकि ये पूरा एक साथ ही डिस्कस परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड एंड सॉल्यूशन। या अगर मान लो आपको ऐसा आता है कि एक्सप्लेन ऑस्मोसिस थ्रू एक्सपेरिमेंट, सो हियर इज एन in which we take a thistle funnel, बाहर solvent है, and in thistle funnel it is solution, it is separated by semi permeable membrane. When we place the funnel in a beaker, solvent molecule moves into the solution side through semi permeable membrane till osmosis equal, and then ये जो pressure apply होगा, this pressure is known as pi. And this, the flow of solvent stops when the downward pressure exerted by the column of liquid and is equal to the upward osmotic pressure. अब ये column जितना increase हो रहा है, हमें height पता चल जाएगी, and this height pi is equals to HdG. Here H is height, D density and G gravitational force हो जाएगा. So हम इसे pi calculate कर सकते हैं. Osmotic pressure is the extra pressure that must be applied on the solution side to prevent, ये आदित्य आपने पूछा था ना, ये आ गया देखो